Good morning everyone. In this video, we are going to see class 11 biology chapter number 4 plant kingdom. Let us start with this chapter. Like plant, we have seen plants are classified into various divisions. Here we are going to study about animals. But before that, we will see what are the basic criteria for classifying the animal. The first basic thing is level of body organization. So we will see whether the animals are have cellular level, tissue level, or organ system level of organization. That means if we are talking about cellular level, the body consists of many cells which may be similar or show minor division of labor, such as sponges, for example. If you are dealing with tissue level, the body in the multicellular organism has combined together to form definite tissues. The cell occurs in two distinct layers or tissues of specialized cell, for example, coelentrates. If we are discussing about organ system level, the body is multicellular with tissue, organ and systems. So, for example, mammalia, बॉडी एनिमल्स की सेल्स की बनी हो सकती है, टिश्यूज की भी बनी हो सकती है और ऑर्गन की भी बनी हो सकती है. उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं. फिर आ जाते हैं हम बॉडी सिस्टम पे, सिमेट्री पे. हम एनिमल्स में तीन टाइप की सिमेट्री दे सकते हैं: रेडियल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल. अगर हम एनिमल को किसी एक प्लेन ऑफ डिवीजन से काटे तो वो दो इक्वल हाफ में, यू कैन सी इन द डायग्राम ऑफ क्रैप, दो इक्वल हाफ में टूट जाए सिर्फ किसी एक प्लेन से काटने पे, तो उसे हम बायलैटरल सिमेट्रिकल कहते हैं. अगर हम किसी एनिमल को किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन से काटे तो वो दो इक्वल हाफ में टूटे, उन्हें हम रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं. और ऐसे एनिमल जिन्हें हम जो ब्रेक डाउन नहीं हो सकते किसी भी टू इक्वल हाफ में, तो उन्हें हम एसिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं. नेक्स्ट इज germ layer, diploblastic or triploblastic. We know there are three types of germ layer: ectoderm, endoderm and mesoderm. Animals consisting of two germ layer, that is ectoderm and endoderm, are called diploblastic. An animal consisting of all the three germ layer, ectoderm, endoderm and mesoderm, they are called as triploblastic. Then comes the next level, that is coelom. Coelom is a fluid filled space between the body wall and the digestive tract. Coelom is found in animal with tube within a tube body plane. On the basis of coelom, animals can be acoelomate, pseudocoelomate or coelomate. Acoelomate, coelom is not present or body cavity is not present, they are called as acoelomate. Pseudocoelomates, the animal have half coelom, that is called as pseudocoelomate. Coelomate, the animal is having body cavity, true body cavity, then they are called as pseudocoelomate. Next is segmentation. कुछ एनिमल्स में सेगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे हम एनालिडा के मेंबर्स की बात करें तो उनकी बॉडी में सेगमेंटेशन होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म, तो उन्हें हम मेटामर्स कहते हैं. और किसी एनिमल्स में सेगमेंटेशन नहीं पाए जाते, जैसे टेपवॉर्म. फिर नेक्स्ट आ जाता है नोटोकॉड. नोटोकॉड is mesodermal in origin. A small rod-like structure develops on the dorsal surface and it is called as notochord. So on these basis, we are going to classify the animals, and the first classification of animals starts with animal porifera. Let us start with animal porifera. This is the first phylum of animal kingdom that we have to study. Porifera means, porous means pore, feren means bearing. So the phylum porifera include most primitive and simplest animal. They are strange and plant-like creatures. You can see in the diagram. And commonly called as sponges. इन्हें sponges भी कहा जाता है. ये जो रहते हैं ये मोस्टली मराइन रहते हैं और रॉक के ऊपर अटैच होते हैं. कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे स्पॉन्जिला. ये अलग अलग सिमेट्री के हो सकते हैं, रेडियली भी हो सकते हैं, एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं. इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ सेलुलर होता है. इनमें दो जर्म लेयर पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. यानी इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, उसे ऑस्ट्रिया कहते हैं एंड ऑस्क्यूलम कहा जाता है. ये वाटर सर्कुलेशन के लिए काम आते हैं. ये हर्माफोर्डाइट, दैट मीन्स सेक्सेस इसमें सेपरेटेड नहीं होते हैं.
ट्रू बॉडी कैविटी इसमें नहीं होती है. Examples you can see cyan, spongilla. These are the examples of porifera phylum. Next phylum is Coelenterata, Coelenterata. You can see in diagram the animal Coelenterata. इसको सिंडेरियंस भी कहा जाता है. ये ज्यादा करके मराइन होते हैं. कुछ ही एनिमल जैसे हाइड्रा फ्रेश वाटर में पाया जाता है. फ्री स्विमिंग होते हैं. इसके एनिमल्स जेलीफिश वगैरह इसमें रेडियल सिमेट्रिकल होती है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. इसकी जो जर्म लेयर होती है वो डिप्लोप्लास्टिक होती है. एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों ही होते हैं इसमें प्रेजेंट. इसमें दो टाइप के आपको एनिमल दिखेंगे. एक को पॉलिप्स कहते हैं, दूसरी को मेडुसा कहते हैं. पॉलिप्स जिनमें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होती है फेस. मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फेस कहलाती है. नेक्स्ट इज टीनोफोरा. लेट अस सी द एग्जांपल. टीनोफोरा मराइन होते हैं, सॉलिडेटरी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ओवल राउंड कोनिकल शेप के होते हैं, बायरेडियल होते हैं. इसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. बॉडी इनकी डिप्लोप्लास्टिक होती है और इसमें ये बायोलुमिनियस होते हैं. रेस्पिरेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम वगैरह इसमें एब्सेंट होते हैं. इसमें ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, दैट इज बायसेक्सुअल कैटेगरी में ये फॉल करते हैं. नेक्स्ट है प्लेटीहेलमिन्थस. प्लेट्स मतलब फ्लैट, हेलमिन मतलब या हीलम मतलब वॉर्म. अगेन दे आर मोस्टली पैरासिटिक. पैरासाइट्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमन के इंटेस्टाइन वगैरह में पाए जाते हैं. डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं. बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ये ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं. इनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. डिजीज कॉजिंग होते हैं ये एनिमल्स. एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हियर टीनिया एंड लिवर फ्लू. नेक्स्ट इज एस्केलमिन्थस. एस्केलमिन्थस के जो एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल राउंडवर्म, दे आर फ्री लिविंग, एक्वेटिक. इनकी जो सिमेट्री होती है बॉडी बायलैटरल होती है. ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है. इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है. सूडोसिलोमेट होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं. ये डायोशियस होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग पाई जाती है. इसके एग्जाम्पल्स है एस्केरिस, राउंडवर्म, बुस्टेरिया एक्सेट्रा. नेक्स्ट है एनालिडा. इसका सिंपल एग्जाम्पल अगर देखें तो अर्थवॉर्म होता है. इसकी बॉडीज में सेगमेंट्स होते हैं. ये सेगमेंट्स को मेटामर्स भी कहा जाता है. बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं ये लोग. फ्री लिविंग, पैरासिटिक भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल इनके यहाँ पे आप डायग्राम देखते हो. बॉडी में क्या है, सेगमेंट्स है. एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यहाँ पे नेफ्रेडिया प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल नेरीज. नेक्स्ट है ऑर्थोपोडा. लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का ऑर्थोपोडा. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. बायलैटरल सिमेट्रिकल है. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. सिलोमेट होते हैं. ट्रू कैविटी बॉडी कैविटी होती है. बॉडी डिवाइड होती है हेड, थैरक्स और एब्डोमिनल में. इनके जो अपेंडेजेस हैं, हाथ, ये लेग्स आप देखते हैं यहाँ, तो ये जॉइंटेड होते हैं. इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो गिल्स या लंग्स या बुक गिल्स के थ्रू होता है. और रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन होता है. एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है, जैसे मैल्पिगन ट्यूब्यूल. एग्जाम्पल स्कॉर्पियन, क्रैब, बटरफ्लाई, ग्रासहॉपर. नेक्स्ट इज मोलस्का. ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होते हैं. टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं. इसकी सिमेट्री बायलैटरल होती है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. इसमें बॉडी कैविटी पाई जाती है. बॉडी डिवाइडेड है हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में. इसमें गिल्स भी पाए जाते हैं फॉर रेस्पिरेशन. यू कैन सी एग्जांपल इज पाइला, ऑक्टोपस. नेक्स्ट इज इकाइनोडर्मेटा. इसका एग्जांपल है स्टारफिश. इनके जो एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं, कैल्सेरियस स्केल्स होते हैं. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. रेडियल सिमेट्रिकल होता है लार्वा स्टेज में. एडल्ट जो होता है उसका रेडियल होता है, लेकिन जब लार्वा स्टेज में तो बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं.
ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है इसमें, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, इसका एक डिस्टिंक्ट फीचर है, इसका एग्जांपल है स्टारफिश। नेक्स्ट है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का मतलब होता है, हेमी का मतलब होता है हाफ, कॉर्डेटा मतलब जिनके पास वर्टिकल कॉलम होती है, बॉडी इनकी वर्म लाइक होती है, बॉडी 3 भागों में डिवाइडेड है, ऊपर का हिस्सा प्रोबोसिस, बीच का कॉलर और नीचे का ट्रंक कहलाता है। इसमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन होता है। नेक्स्ट इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटास मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके पास वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट है। कॉर्डेटा के कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स प्रेजेंट होते हैं और ये सब डिवाइडेड होता है अलग अलग क्लासेस में। सो द कॉर्डेटास are fundamentally characterized by presence of notochord. You can see in the diagram a rod-like structure which is present in the alimentary canal, digestive tract, and above it is called as a notochord. Then gills are present. They are bilateral, symmetrical, triploblastic. Body cavity is there. Organ level of organization is present. Post-anal tail, closed circulatory system in organism में पाया जाता है। इसको अलग-अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में पहले डिवाइड कर दिया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वी हैव टू डिटेल स्टडी वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में पहले आ जाता है साइक्लोस्टोमा। ये जो जनरली फिश होती हैं, इनके पास 6 से 7 गिल सेट्स होती हैं, ये सकिंग होती हैं, इनके पास जॉज नहीं होते, दे आर विदाउट जॉज, इनका माउथ सर्कुलर होता है। इनका जो वर्टिकल कॉलम है और क्रेनियम है वो कार्टिलेज का बना होता है। नेक्स्ट इज कॉन्ड्रियोसाइट्स। ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जो इनका कार्टिलेज होता है, एंडोस्केलेटन होता है, वो कार्टिलेज का बना होता है, जैसे हमारा बोन का बना होता है। इनके माउथ में जॉस प्रेजेंट होते हैं और गिल्स सिल्ट कवर्ड होती है ओपर्क्युलम से, और इनकी बॉडी में स्केल्स भी पाए जाते हैं, पैलेकॉइड स्केल्स कहते हैं इन्हें। ये पॉइजनस इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी हो सकते हैं, इनमें पॉइजनस स्टिंकिंग भी हो सकते हैं। हार्ट इनके 2 चैम्बर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट्स। ये इनको हमेशा ऊपर वाले क्लास को कि जो एनिमल्स होते हैं उनको हमेशा स्विम करना रहता है, क्योंकि इसमें एयर ब्लैडर नहीं होते हैं। लेकिन इसमें ऑस्टियोसाइट्स में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं जो उनको बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। गिल्स आर कवर्ड बाय ओपर्क्युलम। गिल्स प्रेजेंट है 4 पेयर में और ओपर्क्युलम प्रेजेंट से कवर्ड होती है। ये फ्रेश वाटर या मराइन वाटर में पाए जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, दैट मीन्स एग और स्पर्म बाहर ह्यूमन बॉडी के, एनिमल बॉडी के बाहरी फ्यूज होते हैं। नेक्स्ट इज एम्फीबिया। एम्फीबियंस के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। टेल मे प्रेजेंट और मे नॉट प्रेजेंट। स्किन मॉइस्ट होती है। आईज के ऊपर आईलिड्स प्रेजेंट होती है। इनके ईयर में टाइफेनम प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ये कॉमन जगह पे ओपन करते हैं, जिसको कोका कॉलकल कहा जाता है। ये रेस्पिरेशन गिल से भी कर सकते हैं, लंग्स से भी कर सकते हैं और स्किन से भी कर सकते हैं। इसमें सेक्सेस सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन बाहर होता है और एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, एग्जाम्पल फ्रॉग। नेक्स्ट आ जाते हैं रेप्टिलिया पे। रेप्टिलिया के एग्जाम्पल्स यू कैन सी इन द डायग्राम। ये सारे रेप्टाइल्स हैं। क्रॉलिंग की क्रीपर्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, बॉडी के ऊपर जो स्किन है वो ड्राई होती है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्स इनके अनडेवलप होते हैं, 2 पेयर्स में होते हैं। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसका हार्ट 4 चैम्बर्ड है, और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। सेक्सेस इसमें भी सेपरेट होते हैं, लेकिन इसका डिफरेंस ये है कि ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, एग लेइंग होते हैं। ओविपेरस मतलब एग लेइंग। नेक्स्ट है एव्स यानी बर्ड्स। फेदर्स प्रेजेंट होते हैं फ्लाइट के लिए। बीक प्रेजेंट है, विंग्स होते हैं इनके मूवमेंट के लिए, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। एयर कैविटी प्रेजेंट होती है जो इनको हॉलो, ताकि इनका बॉडी वेट हल्का हो। ये वार्म ब्लडेड होते हैं नेचर में और ओविपेरस होते हैं। नेक्स्ट इज मैमेलिया।
ये एग्जाम्पल्स हैं मेमेलिया के। मेमेलिया के पास मेमोरी ग्लैंड होता है जो यंग वन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। Their limbs are adapted for walking, running, burrowing, swimming or flying. The external ear और pinna are present. ये वार्म ब्लडेड होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास लंग्स होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। गिव बर्थ टू यंग वन, इसलिए इसको विविपेरस एनिमल्स कहा जाता है। इफ यू विल लर्न दिस चार्ट, वी विल लर्न whole chapter and its general characteristics. So we have finished our chapter Animal Kingdom, class 11, chapter number 4. Thank you.